स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं आपके लेसन फर्स्ट के पार्ट 2 वीडियो में। हमने अब तक जो कहानी पढ़ी है फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, उसका कुछ रिकैप कर लेते हैं, दोबारा से उसको संक्षिप्त में थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। लेट्स रिकैप द स्टोरी। द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर when children don't have traditional books and schools. Margie, a little girl in the story, makes a diary entry. Tommy found a real book. The entry reveals the date 21st May 2157, showing that the story is set much into the future. The book was a very old one, just like the one that her grandfather had in his time as a student. Its pages were yellow, and she found it funny to read the words that were not moving like that on a computer screen. When Tommy had the book in his hand, he called it a waste because after one time reading, it could be thrown away. The same feeling was with Margie too. Tommy found that book in the attic of his house, and that book was about a school. Margie hated her school and her mechanical teacher a lot. Her teacher was not a living being. He was an image that flashes on her screen in her study room. He gave her test after test in geography, and she was not doing well. Her failure in geography had invited an inspector who tried to trace out the problem. So her mother had asked the county inspector to come and find what was wrong. The county inspector was a round little man with a red face. Margie had thought that he would take her mechanical teacher away completely, but it was not so. The inspector set the teacher right within an hour or so. He told her mother that nothing was wrong with the girl, rather the screen was too fast for the girl, and therefore Margie was having troubles. Now it had been slowed down so that she would be okay with its level. On reading that book, Tommy had a discussion about the school with Margie. The old kind of schools were a building common to all, and with human teachers who would teach all the boys and girls the same thing if they were of the same age. Let's start the story again. Margie wasn't prepared to dispute that. मार्गी उस पर डिस्प्यूट करने के लिए, बात करने के लिए वो तैयार नहीं थी। टॉमी के साथ में झगड़े के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए, क्योंकि उसको जो पता चला कि पिछले स्कूलों में जो पहले सैकड़ों साल पहले होते थे उनमें आदमी टीचर हुआ करते थे और वो पढ़ाने आते थे। तो वो कहती है, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी चिल्ला कर हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kinds went there. टीचर घर में नहीं रहते थे, उनके एक स्पेशल बिल्डिंग, विशेष भवन हुआ करते थे और सारे बच्चे वहाँ जाते थे, सारे किड्स वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। यदि वे एक ही सेम आयु के थे तो वो सभी ये बातें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है, मगर मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को हर बालिका और बालक, बॉय और गर्ल, जिसे वो पढ़ाता है उसके अनुकूल होना होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, होशियार है तो उसके अकॉर्डिंग कराना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो एडजस्ट होना पड़ता है, माइंड को करना पड़ता है टीचर को।
एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर प्रकार के बालक को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए. जस्ट द सेम, just the same. They didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ठीक है, तो वे इस तरह नहीं करते थे. यदि तुम पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए. Just the same, they didn't do it. They have then. If you don't like it, यदि तुम पसंद नहीं करती हो, you don't have to read the book, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए. I didn't say I didn't like it. मैंने यह नहीं कहा और कि मैं यह पसंद नहीं करती. मार्गी said quickly, जल्दी से मार्गी ने कहा. She wanted to read about those funny schools. वह उन funny schools, मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. That's why this lesson is named the fun they had. मज़े जो उन्होंने किए. तो वो इसी ये टाइटल दिया है इस लेसन का, इसलिए तो वो उन मज़ेदार बातों के बारे में पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल. उन्होंने अपनी बात आधी भी खत्म नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने बुलाया. मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया था, उसकी माँ बुला रही थी. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर देखा. नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, यानी कि अभी टाइम बाकी है. नाउ सेड मिसिज जोन्स. मिसिज जोन्स ने कहा अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और अब तो टॉमी के भी जाने का समय हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं ये पुस्तक स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड नॉनचेलेंटली. उसने कहा, टॉमी ने, कि हाँ हो सकता है. वो बोला पर नॉनचेलेंटली, यानी बिना उत्साह के, लापरवाही से वो बोला. ही वॉकड अवे विस्लिंग. और वो सीटी बजाता हुआ चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. वो जो धूल भरी पुरानी किताब थी, डस्टी, वो टक्ड माने दबाए हुए, अपने बगल में दबाए हुए वो सीटी बजाते हुए चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब स्कूल जाने के लिए मतलब ऐसा नहीं था किसी मोटर बस से जाके उसको बिल्डिंग जाना था, क्योंकि ये तो 2157 का स्कूल है, एडवांस स्कूल है. तो घर में ही टीचर है, घर में ही स्कूल है. तो मार्गी स्कूल रूम में, अपने स्कूल की कक्ष में चली गई. ही मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ये बिल्कुल उसके जो बेडरूम था उसके ठीक बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन. और जो उसका मशीनी शिक्षक था वो उसका इंतज़ार कर रहा था, ऑन पोजीशन पे था. एंड वाज वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स. ये शनिवार रविवार को छोड़ करके रोज एक ही समय पर होता था. उसकी जो पढ़ाई है वो शनिवार इतवार को छोड़ के रोज एक ही टाइम पे होती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं, इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स, यदि उनको नियमित समय पर सही टाइम टेबल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए. द स्क्रीन वाज लिट अप. जो स्क्रीन थी उसकी स्कूल की, यानी जो रोबोट था उसकी स्क्रीन चमक उठी. एंड इट सैड. और स्क्रीन के मुंह से निकला, क्योंकि वो ऑन पोजीशन पे था तो रोबोट जैसी भाषा में बोलता है उस भाषा में वो रोबोट बोला उसका, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज का अंक गणित का पाठ है और हम भिन्नों को जोड़ने का ये पाठ है. भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में, भाग में जमा करें. इतनी बात उसके कंप्यूटर शिक्षक ने बोली.
मार्गी डिड सो विद ए शाई, मार्गी ने एक लंबी शाई माने सांस के साथ में, लंबी सांस के साथ में उसने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो वो स्कूल थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे, तब के उन पुराने स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी आस पड़ोस के सारे बच्चे आते, लाफिंग, हंसते, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और चिल्लाते हुए स्कूल के प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ एक ही शाला कक्ष में बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर जब छुट्टी हो जाती थी तो उसकी समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सभी एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो एक दूसरे के गृह कार्य में मदद कर सकें और इस बारे में बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर बार बार चमक रहा था। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, वो बोले जा रहा था उसका रोबोट कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं, ये सब वो बोले जा रहा था। पर मार्गी का दिमाग उस पे के सुनने में नहीं था, वो अपनी अलग दिमाग में सोच रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि मार्गी सोच रही थी किस तरह पुराने समय में बच्चे एक दूसरे से अवश्य ही प्रेम करते होंगे, एक साथ पढ़ते थे इसलिए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उस आनंद के बारे में जो उन बच्चों ने एहसास किया। सो वी रिकैप अगेन इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स the story. Margie's school room was next to her bedroom, where the mechanical teacher was on and waiting for Margie. Her school was open every day except Saturday and Sunday. Margie's mother believed that girls learn better if they do it regularly. The mechanical teacher, the screen lit up, and the mechanical teacher was going to teach lesson on arithmetic. It was about the addition of proper fractions. Margie had no interest in it. Margie had to put yesterday's homework in the proper slot too. The mechanical teacher never forgot to ask for the homework. Margie was sitting in front of her mechanical teacher, but she was thinking of the good old days when the kids had a common time and place to study. She was also thinking of the human teacher that used to teach them. She was thinking of the fun they had at the school. तो आपने ये वीडियो और ये स्टोरी अच्छे से पढ़ी, अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसके कुछ हाइलाइट्स आपको हम एक बार बता देते हैं। मार्गी जो है, in her diary, Margie wrote about Tommy finding a new book on the schools of the old days. Second point, the old kinds of paper books used to have pages unlike the e-books. Third, Tommy and Margie considered such books to be nothing more than a waste as they were worthless after the first reading. Fourth, Margie hated her mechanical teacher a lot because he was giving her test after test and she was not doing well. Fifth, the county inspector came to repair the mechanical teacher of Margie so that its level could match the level of Margie. Sixth, Margie was disappointed when the mechanical teacher was not taken away by the county inspector completely. Next, Tommy and Margie both discussed the old schools and the teachers that were human beings. And next, Tommy and Margie went to their schools to attend their lectures.
The mechanical teacher flashed at their school time every day except Saturday and Sunday. Margie, with a heavy heart, had to put the homework in the proper slot, which she hated. Even being in the classroom, she was thinking at the old kind of schools with the kids and the human teachers. And last, the mechanical teacher was on, but Margie was engrossed in thinking of the fun they had in the old days. आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और आपको इसी तरह के आपके नए सिलेबस के सारे लेसन और इनके क्वेश्चन आंसर जल्दी ही MP इंग्लिश क्लासेज आपको देगा। यदि आप MP इंग्लिश क्लासेस के सारे वीडियो चाहते हैं कि वो आपको मिलें और उनके टेस्ट पर भी, ग्रामर के टेस्ट पर भी आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओनली एडमिन पर सेट रहता है, क्योंकि बच्चों को आपस में मैसेजिंग करके वो ग्रुप की, आजकल ग्रुप में बहुत मैसेज लोग डाल देते हैं, तो वो सब ख़राब नहीं हो, इसलिए केवल हम ओनली स्टडी करने के लिए ही उसको ओनली एडमिन पर सेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों की तो उन डिफ़िकल्टीज़ को हम अपने व्हाट्सएप नंबर पर सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करें। आपसे आपके स्कूल का नाम और आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी। इसके बाद आपको ग्रुप की लिंक भेज करके आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं भी आना चाहते हैं तो आप हमारे MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को, चैनल में फिल्टर में जा करके, फिल्टर में आप चैनल, ऑल चैनल में जा करके आप सिलेक्ट करेंगे MP इंग्लिश क्लासेस, तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर MP इंग्लिश क्लासेस आ जाएगा और सारी वीडियो आप उस पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब यदि करेंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सर्च की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको इस सब्सक्राइब के बटन को टच करना है और इसके बगल में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको आपको टच करना है और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें जो ऑप्शन ऑल वाला ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे तो मेरे ऑल यानी सारे वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के इनबॉक्स में पहुँच जाएंगे और बेल दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो कीप ऑन वॉचिंग MP इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।